which is great. इन्होंने मुझे पूछा कि आप कुछ कर सकती हैं हमारे लिए? मैं कहा नो, आपके लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए तो कर सकती हूँ. फिर मैंने रीच आउट किया because I have a council seat at the Institute for Human Rights. उनको अप्रोच किया, प्रपोजल सामने रखा उनके कि प्लीज़ we want to create some awareness in the media, have some campaigns in Europe, try to pressurize governments to take this issue serious. Now the Institute is a special organization since it's governmental. So वहाँ से पहले उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, रिजेक्शन आई, डिसाइड हो के हम घर आ गए. फिर हमने कंसल्ट किया कि दूसरों को कि अब क्या, what to do. फिर मैंने लड़कियों से बात की कि I have an NGO seat, I have a council and a board seat in a big NGO called Action Aid Denmark, and I represent Action Aid Denmark in Action Aid International. So maybe they will take up the project. And luckily, we had a meeting with them and they did. They said, okay, we take on your proposal. So, एक presentation बंद हो गया. So, technical थोड़ा issue चल रहा है. But what I will do is, मैं आपको थोड़ा सा involve करती हूँ जो activities चल रही हैं Action Aid के साथ. Beta, can you put it to the slide number 5? 6, 7, आगे जाए बेटा. अभी और and next one. Yes, this one. Okay. Sabah and Naila, they reached out to me in hope for potential solutions. So we did a brainstorming. Institute से तो human rights institution से तो आ गया rejection. So what to do? हम बैठी, थोड़ा brainstorm किया कि potential solutions क्या हैं हमारे लिए. पाकिस्तान इतना दूर है हम सबसे, approachable नहीं है वहाँ के. It's not like anybody can just walk in the parliament. हालांकि it should be like that. Unfortunately ऐसा नहीं है पाकिस्तान में. So we thought, okay, let's measure the judicial independence and the accountability. Let's try to set up a framework, anti-corruption strategy रखें, effective policies, international cooperation के साथ, civil society को engage करें. So we had a lot of protests going on in front of the embassy, in front of the parliament, क्योंकि ये भी एक way है ना, it's a tool when you protest. Social movements के साथ, it's a very effective tool actually. लेकिन फिर हमने सोचा जो NGOs का role है ना, it's a big role in promoting the rule of law. The rule of law which is in decline in our country. So, with the next slide. We had this meeting with Action Aid recently, and with awareness have, unfortunately, they are prioritizing Palestine right now, which is understandable. लेकिन इससे हमारा मसला तो ठीक नहीं होता ना. So, what we've decided is, because there's a new board election on the 1st and the 2nd of June, we have a meeting once the new board is constituted. In the mid of June, and they have actually offered us a budget, and they've offered us to take up a project regarding campaigning in Denmark and regarding campaigning in Pakistan. So, तवज्जो चाहती हूँ, because please reach out if you have any interest in the task force that we're putting together to try and set up some work fielders in Pakistan, but also to reach EU and the United Nations. So this is what's in pipeline for us. But actually, हम काफी आगे पहुंच चुके हैं to get the awareness of the NGOs. So hopefully, once we meet next time, we have great results in front of you. Thank you so much. सिलसिला होगा, उसमें आप हमसे सवालात भी कर सकते हैं, मज़ीद कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं.
شکریہ. اب میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھایا ہے. اس طرح کے بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ابھی ابھی رہا ہوئے ہیں, ان کے ساتھ دیکھیں, آپ ان کی حالت دیکھیں. بیچارے ویسے تو خوش ہیں کہ وہ گھر آ گئے, لیکن ان کی آگے کے روزگار کا کس نے سوچنا ہے؟ ہم نے سوچنا ہے. جو پکچر تو میں اپنا مختصر سا تعارف یہ کرواتا ہوں. میں 2008 سے تحریک انصاف کا ممبر ہوں. جب سے خان صاحب ہمارے پاس 2008 میں ہمارے پیر عمر صاحب نے ہمارے پاس پیسے لے کے آئے تھے, تو جب سے ہم تحریک کے ساتھ منسلک ہیں. تو میں دو چار چھوٹی سی باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. میں خود اپنے آپ پہ تنقید کر رہا ہوں. ایز اے قوم, ایز اے نیشن, میں نے ایک شعر لکھا ہے, میں سویا ہوا ہوں غفلت کی نیند میں, مجھے جگائے اور کوئی, کہنے کو میں انقلابی ہوں, میری جنگ لڑے اور کوئی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہنے کو انقلابی ہیں لیکن سوچ رہے ہیں ہماری جنگ کوئی اور لڑے گا. بھائی یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, یہ کسی اور نے نہیں لڑنی. اس لیے میں نے یہ شعر لکھا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند میں, ہمیں اٹھنا ہوگا, جاگنا ہوگا. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری یہ کوئی اور آزادی کی جنگ لڑے گا تو ہم یہ بہت بڑی بھول میں ہیں. اس جنگ کو ہم نے خود لڑنا ہے. یہ ہمارے بچوں کی جنگ ہے جو خان صاحب ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کا اصل نشانہ تو آپ لوگ ہیں, میں تو بیچ میں دیوار ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے علاقے میں متحرک ہونا چاہیے. پاکستان میں اپنے لوگوں کو متحرک. اس کے بعد کنی سغرا بٹ صاحبہ, ان کا تعلق بند سے وہیں سے جہاں سے میں آیا ہوں. یہ بھی پی ٹی آئی کی ایک بہت اچھی کارکن ہے. ماریہ ممتاز صاحبہ, ان کا تعلق بھی بند سے, انہوں نے بھی ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے جو یہ آپ کو دکھائیں گی. وہ روڈ میپ کے سلسلے میں جو پریزنٹیشن کرنی ہے وہ ان دونوں خواتین نے کرنی ہے. اور دیگر ہمارے زیوری واصل کے ہمارے ساتھی ہیں, اور جنیوا سے ہمارے شیر افضل صاحب, طیب صاحب زیوری سے, حافظ مظہر حسین صاحب زیوری سے, ارشد صاحب واصل سے, اصغر صاحب سے, اور عمر رحمان صاحب کو تو آپ دوسرے. ایک اور خاص مہمان یہاں بیٹھے ہیں, غلام جیلانی صاحب. یہ ہے ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی ایشیا پیسفک ریجن, تو ان کے لیے بھی تعریف. ہمارے مزید یہاں پر زیوری کے دوست بیٹھے, تو سب سے پہلے میں آپ کے خوش آمدید کو جناب شہباز صاحب کو, پھر میں شکریہ ادا کروں گی او آئی سی کے ڈپٹی سیکرٹری عمر رحمان کو, جنہوں نے ہمیں سب کو یکجا کیا, یکساں حیثیت پہ یہاں لا کے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس پہ آج آپ کو کتنی خواتین نظر آ رہی ہیں, کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ یہاں سے تقریریں کرنے نہیں آئے,
जो यहाँ पे ये बताने आए हैं कि वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं यूरोप को मुस्तहकम करने में, यूरोप की पीटीआई को, और वो क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं बाकी लोगों को मुतहद करने में। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ शकील साहब का, जिन्होंने इतनी सख्त मेहनत करके और हमें इतने अच्छे मेहमान दे के प्लीज सेमिनार का इफ्तिताह किया। मैं ये बताती चलूँ कि ये एक कड़ी नहीं है, ये पहली एक कड़ी है। इसको हम जारी रखेंगे हर साल और इसको लेके हम आगे चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 9 मई में जो हमारे बहन भाई कैदी जिनके ऊपर जुल्म हुआ और उनको कैद करके उनको जुल्म का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर हमने ये सोचा कि हम अपने तरीके तो सब मदद करते हैं और वो मदद हमारी पता नहीं किस तरह पहुंचती है नहीं पहुंचती, हम अपनी तरफ से क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इससे आपने सख्तियाँ झेली और जिस तरीके से आपने जुल्म से था, यहाँ हम सब पाकिस्तान के वो आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको वहाँ से निकाले। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान में खासकर पंजाब में हमारी लीडरशिप कुछ नहीं कर रही और आवाम बाहर नहीं निकलती। जो मेन वजह है हमारे पंजाब में कि कोई भी लीडरशिप आती है तो वो निशाना बन जाती है, खासकर हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, या वो डरती है। आवाम निकलने के लिए तैयार है लेकिन लीडरशिप कमजोर है। इसके हवाले से आप क्या बात बात ये है कि मैं मुझे पार्टी का हिस्सा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पार्टी का हिस्सा ना हूँ, वो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, लतीफ़ा सुनाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि एक बंदा किसी से पूछता है कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहता है फलां शहर के रहने वाले। वो कहता है वहाँ के लोग तो बहुत ही ये होते हैं, वो गालियाँ देते हैं, चाहता हूँ कि उस शहर के लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, गालियाँ दे देते हैं। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो दिल में सोचता है मैं इससे पूछूंगा, जब ये बताएगा कि मैं इसके शहर को गालियाँ दूंगा। वो पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहता है फतेहगढ़ शरीफ के। अब वो क्या ही होता है, कब काम आ गया तो वो बड़ा मजबूर होकर कहता है कि काश मुझे 40-50 किलोमीटर इधर उधर हो गए तो फिर मैं समझ। तो बात ये है कि अगर मैं एक आजाद तजिया कार हूँ तो फिर तो मैं बहुत डिफरेंट तरीके से सारी चीज़ को मैनेज करता। अब मैं मुझे पार्टी का हिस्सा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे कहने की हैं, मैं उन पर खामोश हूँ, और वो जो फोरम होता है उसको मैं कहता हूँ, वहाँ मैं खामोश नहीं रहता। जो हमारी पार्टी के फोरम में बैठ के कहता हूँ, तो इसलिए आपका सवाल जायज़ है, आपका सवाल जायज़ नहीं है, आपका कंसर्न भी जायज़ है, आपकी फिक्र भी जायज़ है, लेकिन मेरा मसला ये अप्रेंटिसशिप 2022 में कंप्लीट की। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने 3 साल अमेरिकन एम्बेसी में एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी काम किया, स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान एम्बेसी बेरन में एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी काम किया। यह तो था मेरा मुख्तसर सा ताल्लुक। अब हम चलते हैं यूरोपियन यूनियन की तंजीम नौ के रोड मैप की तरफ। बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों को फ़ाल और माली मामलात के लिए ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टीम्स तश्कील दी गई हैं, और इनमें सबसे पहले यूरोपियन मीडिया सेल, पीटीआई बिजनेस टीम और नेशनल टीम और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टीम शामिल हैं। आप तब से रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल लिख लें, प्रेजेंटेशन के बाद स्विस पीटीआई टीम आपके सवाल का जवाब देगी। ये जो रोड मैप हमने डिज़ाइन किया है, इसमें सबसे पहले तो मैं कारकुनान के बारे में बता दूं। ये हमारे जो टीम्स हैं वो फ्रंट लाइन, मिड लाइन और हिडन लाइन मेंबर्स पर मबनी होगी। फ्रंट लाइन मेंबर्स जो हैं ये वो लोग होंगे जो बिल्कुल बेखौफ होकर काम करेंगे और यूरोप की चैप्टर्स की जो 4 लीडरशिप रोल्स हैं उसको निभाएंगे। मिड लाइन मेंबर्स वो लोग होंगे जो फ्रंट लाइन मेंबर्स के राइट हैंड होंगे और ये सेमी प्रोएक्टिव मेंबर्स होंगे, और इसके अलावा इनका काम होगा स्पॉन्सर्स को अरेंज करना या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि हमने आज किया है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं हिडन लाइन मेंबर्स। ये वो लोग होंगे जो किसी भी वजह से सामने नहीं आना चाहते, लेकिन
पस पर्दा रहकर ये अपनी कीमती तजावीज़ और माली मदद से अपना किरदार निभाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेशनल टीम की। इसके मज़ीद 5 सब डिवीजन होंगे, जिसमें सबसे पहले तो रीजनल टीम्स हैं, यानी इलाकाई तंजीम, उसके बाद कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बड़ी मेहनत से बनाई गई। उसके लिए मेरी तमाम हमारे जो PTI के हैं और मेरे ख्याल से जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो इस पिटीशन की तायद करेंगे और इस पिटीशन को जो है वो पेश किया जाएगा। हज़रत अली का फरमान है कि जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन अदल और इंसाफ के खिलाफ और जो जुल्म के खिलाफ जो जुल्म का जो निज़ाम है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। कुरान पाक में मुतअद्दिद बार आयात में इसी चीज़ का तज़किरा है और अल्लाह पाक ने हम हर जगह ये फरमाया है और मुख्तलिफ आयात में इसका जिक्र है। अदल का इनफरादी हुक्म मुख्तलिफ आयात में आया है, लेकिन इस आयत में अदल इज्तिमाई का हुक्म है कि अदल और इंसाफ के कवाम यानी सच्चे दाई बन जाएं और इंसाफ करें और मुआशरे में मौजूद जुल्म और ज़्यादती से लाताल्लुक हो जाएं। बल्कि मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि मुआशरे में अदल और इंसाफ कायम करने के लिए उठ खड़े हों। ये सबकी जिम्मेदारी है। जो पुरानी कौमें थी, क्यों वो जुल्म की बिना पे सब कुछ और तबाह बर्बाद हो गई। आप देखिए तरक्की याफ्ता जितनी भी अक़वाम है जिन्होंने तरक्की की है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके मुआशरे, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, उनके जो मुआशरों में अदल इंसाफ का जो निज़ाम है वो कायम किया गया है। अदल इंसाफ पर चलते हैं। आप हम जिस मुल्क में खड़े हैं यहाँ पर आप देख लें, चाहे कोई अमीर है गरीब है, सबके लिए अदल का यकसा निज़ाम है। ये वो तहरीक है जो हमारे कायद इमरान खान ने 28 साल पहले इसकी बुनियाद रखी थी और इसकी लो अब जा कर के ही हमारे जजेस तक पहुंची है, जिनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने इसके लिए खत लिखा। और अदल इंसाफ के लिए सबको यही चाहिए, मेरी तो ये है कि हमारी अदलिया को बेखौफ होकर इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अदल इंसाफ पर उनको अपने फैसले करने पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आएगा। मुल्क से गुर्बत तभी दूर होगी कि गरीब को भी वही अदल मिलेगा जो एक अमीर, जिस तरह पाकिस्तान में अमीर को फैसिलिटीज़ हैं, एक गरीब को नहीं है। तो अदल के निज़ाम के लिए साइका साहबा को मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने बेहतरीन पिटीशन तैयार की और एक बार फिर मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस पिटीशन को आप लोग प्लीज़ आप लोग शेयर करें और आप लोग पेश करें एक दूसरे को और साथ साथ आगे फॉरवर्ड करते जाएं। और बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जाते जाते एक और बात कहती जाऊँगी। हमारे PTI फ्रांस से बहुत सारे साथी जो हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं हो सके। सुबह से मुझे उनके फ़ोन आ रहे हैं, कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी बिना पर आ रही थी। यासिर कदीर में बहुत बड़ा नाम है यूरोप PTI फ्रांस का, उनका मैसेज आया, अभी भी आया, सुबह भी मुझे आया था, वो सलाम दे रहे हैं शहबाज गिल साहबा को और इस तमाम शिरका को उन्होंने सलाम पेश किया। और उसके अलावा हमारी काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से आ नहीं सकी हैं और वो सब आप सबको सलाम पेश कर रही हैं। यहाँ पे आज पेश किया गया है कि वो बहुत बड़ा है और उसको बहुत ज़रूरत है कि हम उसको कंसूम करें और एक जगह पे कुछ चीज़ों को हम लेके चलें। हमेशा से हमें PTI लीडरशिप की तरफ से, आपने ये भी कहा कि मैं लीडरशिप का हिस्सा हूँ, तो मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि हमेशा से लीडरशिप की तरफ से हमें एक ही, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जितने इलेक्शन की कैंपेन लड़ी आप लोगों ने वहाँ पे बैठ के, अमेरिका में बैठ के, हमने अपने डेनमार्क में बैठ के 12-12, 14-14 घंटे हमने इलेक्शन के दौरान ब्रॉडबैंड लाई और सब कुछ किया। लेकिन हमें लीडरशिप जो कि है थी बीच में, उनकी तरफ से हमें कभी कोई रोड मैप नहीं मिला कि हमने क्या करना। हम लोगों ने खुद किया, मैंने खुद आपको अप्रोच करने की कोशिश की। जाहिर बात है मैं भी बहुत से फैंस की तरह आपको लिखती रही। फैसल जवेद से मेरी बात हुई, सरदार नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे बारहा ये सवाल पूछा गया, लेकिन क्योंकि
जब हमारा लीडर अंदर बैठा है तो हमारी होप आप लोग हो। जब आप लोग हमें एक रोड मैप नहीं देते हो तो आप हमें तो जो समझ आएगी हमें यही करना है। इस टीम में जितनी भी औरतें आई हैं उनके घर में बच्चे हैं, अपने बच्चों को सबको छोड़ के आए हैं। हम वर्किंग वूमेन है, हमें बड़ी मुश्किल से वीकेंड्स की छुट्टियां मिलती हैं, आपको बहुत पता है कि कितना ये मुश्किल काम होता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारा ख्याल था इस टीम का, उन्होंने वो रोड मैप बनाया, आपने देखा, आप उसमें से हमें गाइड करें कि हम कौन सी चीज़ों को ले जाते हैं। थैंक यू। देखिए, आपका जो सवाल है, कंसर्न है, वो बिल्कुल जायज़ है। उसमें आपने कोई बात भी ऐसी नहीं है जो जायज़ ना हो जो आपके। आज ये जो तशनीकी है इसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह ये कि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तान में, इसलिए मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कहने लगा हूँ, मुहावरा तो नहीं कहने लगा। और अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो लिख लें। जब जो मैं बोलने लगा हूँ नहीं सुनिएगा, इसको लिख लें कापी पेंसिल, ताकि आपको बाद में दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आएगा क्या। मैंने पूरे पाकिस्तान का मतलब मैं हर बंदे को तो नहीं, हुकूमत के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर सामने जो लोग जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, अपनी पार्टी के तो सारे मेन लोगों से होता था, हुकूमत के वजीरों मुशीरों से या फिर नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जितना इंटरेक्शन मेरा होता, मैंने पूरे पाकिस्तान में एक शख्स को ओवरसीज के लिए असल में कंसर्न या वरी और उसका नाम इमरान खान। में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक शख्स, बाकी सब जो है ना वो आपको राजी करते हैं, मुझे भी बीच में रख लें। बाकी सब आपको बस कहते हैं कि आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट। अब आपका मसला क्या है? आपका मसला है आपकी शनाख्त। आपने वापस पाकिस्तान से बोलना, आप अपनी शनाख्त ढूंढते हैं, वरना आप यहाँ आ गए, मैं आपके बच्चे भी यहाँ सेटल हैं, शनाख्त कर रहे, सोच का एक एहसास का रिश्ता है। लेकिन जो उस तरफ लोग बैठते हैं वो ये नहीं सोचते, सवाए इमरान खान से मैं बात कर गया, वो ये नहीं सोचते। उनमें से कुछ थोड़े से अच्छे भी होते हैं जो इमरान खान जितना अच्छा तो नहीं सोचते लेकिन अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनमें एक बड़ी मेजॉरिटी जो है हम लोग को ओवरसीज को पागल ही समझते और आपस में बैठे हुए कहते हैं पागल है, वहां गए हुए हैं, वहां दबा हुए हैं, वहां करेंगे करवाएंगे से आपको ये इधर क्यों घुसते हैं बार बार आके। वो बस खुश होते हैं कि अगर हम जाएं तो हम उनके लिए क्या लेके जाएंगे, अगर वो आए तो हम उनको क्या पेश करेंगे। ये रिश्ता है, ये इंटरेस्ट है, और अक्सर औकात यही रिश्ता हमारा अपने बहुत करीबी अजीजों के साथ भी बढ़ जाता है, आप सबको पता ही है। तो जो मुल्क से बाहर आता है उसका वो ना उधर का होता है ना इधर का होता है, वो खो जाता है। तो हम खोए हुए लोग हैं, जो असल है हमारी शनाख्त खोई हुई है, हम अपनी मट्टी से निकल के किसी और मट्टी में हमें लगा दिया गया है। तो ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। इमरान खान से आप सब लोगों को इसलिए खुशी होती है, आप सब मोहब्बत का इजहार करते हैं कि वो जेन्युइनली आपको इज्जत करता है, वो जेन्युइनली आपके इश्यूज को भी समझता है, उसे पता है आप सब वापस आना चाहते हैं अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं। बाकी सब कहते हैं उठे रहो। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये रोड मैप के बारे में वो दूसरा हिस्सा आपके सवाल का, मैंने आपको कहा था कि तशनीकी का जवाब दे दूं पहले कि ये होता क्यों। आपने कहा ना कोई हमें रोड मैप नहीं देता, तो वही मैं आपको जवाब दूं तो वो आप इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रोड मैप एक तो होता है ना, किसी से आपकी फॉर एग्जाम्पल अब आप किसी को भी कोई चीज़ आपने भेजी उसको मिली नहीं है, या उस तक कोई चीज़ पहुंची नहीं है, या वो इतना मसरूफ है आपसे। आप ये भी तो सोचे ना कि हमारे पाकिस्तान में
ہر بندے کے پاس ہی ہر چیز کے بارے میں کچھ آئے گا. آپ ایک بندہ فار ایگزامپل اگر آپ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں اور گھر میں آپ کی 15 سہیلیاں ہیں تو آپ کسی ایک کی بات سن کے کھانا بنائیں گے. اگر 15 کی بات سنیں گی تو ٹائم گزر جائے گا, کھانا نہیں بنا ہوگا. تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری باتیں سن نہیں سکتے ہوتے بیکاز یو ہیو ٹو, ہو سکتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک کر رہے ہو, لیکن سننے اور کرنے میں فرق, دونوں کا ٹائم ہوتا ہے. مطلب آپ نے سن کے اور کرنی ہے چیز, اگر کرنے والا ٹائم بھی آپ سنتے رہیں گے تو پھر کر چکے نا آپ. تو اس لیے لوگوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے, اس لیے بھی کئی دفعہ کوتاہی ہوتی ہے, وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر پاتے یا آپ کی بات ہی ان تک نہیں پہنچتی. اور زیادہ بڑا ایشو یہ کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے, وہ کبھی اوورسیز رہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ آپ کو کیا بتائے گا, جو شخص کبھی اوورسیز رہا ہے نا, پاکستان میں بیٹھے عمران خان آپ کو کیوں بتا پاتا ہے کیونکہ وہ اوورسیز رہا ہے. وہ ایک اوورسیز پاکستانی کے طور پر اس نے زندگی گزاری ہے, اسے اپنے ایشوز کا پتا ہے, اس لیے وہ آپ کو روڈ میپ دیتا ہے. باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ آپ سوچتے کیا ہیں, آپ کے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں. اچھا جو ہم میں سے بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سوچتے ہیں ماں کی قبر وہاں ہے, میں نے مر جانا ہے, یہاں قبر بنے گا. سو عمران خان ان سارے چیلنجز کو سمجھتا ہے. اب آپ کا سوال آخری حصہ اس کا کہ آگے کے لیے روڈ میپ دیں, تو میں ایک اوورسیز پاکستانی کے طور پر آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جن چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ ہے, فار ایگزامپل کسی کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاورٹی میں سے لوگوں کو باہر نکالا, تو وہ ایک پروجیکٹ پڑھیں, اس میں آپ کو میری گائیڈ لائن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس کے پاس اپنی اپنی اسکل ہوتی ہے. اب میں ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, اب ہو سکتا ہے جو کام آپ کرنا چاہتی ہوں مجھے پتہ ہی نہ ہو. تو آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں نا, فار ایگزامپل میں لائر نہیں ہوں, میں لاء پہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. اب اگر کوئی ہیومن رائٹس پہ لاء پہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے سے زیادہ جانتا ہوگا. تو آپ وہ ایک ایشو پکڑیں اور اس پر کام کریں, کوئی ایک پکڑنے کی مرضی کا جس میں آپ, یہ میری آپ کو گائیڈ لائن ہے. باقی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گائیڈ لائن یہ ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے آپ پوائنٹ اے سے بی کریں, پھر بی سے سی کریں, پھر سی سے ڈی کریں, وہ ممکن نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ راہ آپ نے اپنی خود تلاش کرنی, پیرامیٹرز آپ نے خود بنانے ہیں. میں آپ کو صرف ایک لارجر ایڈوائس کر سکتا ہوں کہ ہر شعبے میں کام ہو سکتا ہے. یتیم بچوں کے اوپر کام ہو سکتا ہے, کرپشن کے خلاف کام ہو سکتا ہے, بیماریوں پہ کام ہو سکتا ہے, دل کے مریضوں پہ, ڈائلسس کے, کینسر کے مریضوں پر, یتیم خانوں کے اندر جو بزرگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ان کے اوپر, اور بہت سارے جن کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. all kinds of aims ہیں. آپ کو ایک ایل پکڑیں اور اس کے اوپر آپ ایک گروپ بنائیں لوگوں کا اور اس پر کام کریں. سوال کا جواب ابھی بھی نہیں دیا آپ نے. اگلا مائل سٹون کیا ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی پاکستان کرنا کیا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, کیسے دلانی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی پاکستان تو وہی کرنا چاہتی ہے جو 2018 میں شروع کیا تھا اور انٹرپٹ کر دیا. کوئی ہم انوکھا کام تو کرنا نہیں چاہتے, ہم تو وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے. ہم پاکستان میں غربت کو کم کرنا چاہتے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو خطا غربت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, اور وہ اس طرح سے نکالنا چاہتے ہیں جو ہم نے آپ کو کر کے دکھایا. سارے پروجیکٹ ہم نے کر دیے. یہ بھی آپ کو ٹیلی ویژن پر نا ایک مہینے میں بیچا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے. وہ کرنا کیا ہے, جو آپ کا پرائمری اسکول کا اچھا ٹیچر کرتا تو وہی ہمیں کرنا ہے, ڈنڈا ٹوٹنا ہے سر. آپ کو کہنا ہے یہ پڑھائی کر کے یاد کیسے سنائیں. سوری سر معذرت, آپ پی ٹی آئی کا منشور بتا رہے ہیں. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے اگلا لائبل کیا ہے؟ پارٹی کر کیا رہی ہے؟ اچھا دیکھیے ہاں جی, دیکھیے بات یہ ہے 2 دن میں میں نے آپ کو کہا کہ اب اگر آپ نے میرے سے وہ ڈپلومیٹک باتیں سنی ہے تو میں سنا دیتا ہوں, لیکن وہ فائدہ نہیں ہے. وہ وہی کہ جو وہاں تنگی بہت ہے, وہاں حالات خراب ہیں, نکلا نہیں جاتا, لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں, اریسٹ ہو جائیں گے, لوگوں کی زندگیاں پہلے تباہ ہو گئی ہیں.
यही बातें हम सुनते हैं तो मैं दोबारा सुना रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, हमें इससे बेहतर करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए, वो पार्टी के अंदर, वो आपने तो नहीं करना ना, वो पार्टी ने करना है। तो वो गंदे कपड़े यहाँ नहीं धोऊंगा ना बैठ के, वो तो मैं कोर कमेटी की मीटिंग में धोऊंगा ना, तो वो मेरी बातें वहां करनी है। वो जो आप मजा यहाँ लेना चाहते हैं पकौड़ों के साथ चटनी का, वो मैं वहां देता हूँ, क्योंकि उससे नुकसान ये कि ये वीडियो बन रही है कि मैं आपको मजा दूंगा, ये साथ उनको भी मिलेगा, समझ रहे ना? तो इसलिए आई हैव टू स्पीक बोलो क्या आखिरी बात करनी थी आपसे, क्योंकि मेरा भी जवाब मैंने इसीलिए 7 सवाल कहे, मुझे ये पता था। नहीं बोले यार, बात करें 1 मिनट यार, बात कर लेते हैं। और एक चीज आपके बात करता हूं, एक चीज आपने और याद रखनी, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, बेवकूफियां हैं, लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं 15 साल तक, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, इसलिए आप ये जो मेरे साथ करते हैं मैं तो वापस खेलता हूँ, लेकिन ये दूसरों के साथ ना किया करें। हर बंदा कितने बंदों में बैठ के ऐसे नहीं खेल सकता। मेरी एक तो एज अ प्रोफेसर ट्रेनिंग है, मेरे नाम ने भी ट्रेनिंग की हुई है, तो मैं तो आपसे पूरा आ रहा हूँ, लेकिन जब आपको कोई भी लीडरशिप मिले तो एक बात ध्यान में सोचिए, एक जो 1-on-1 कम्युनिकेशन होती है ना, वो मजमे में नहीं होती। ये जैसे सवाल जवाब जो होता है, मजमे में आप सवाल करें कितना मर्जी तीखा करें, सख्त करें, बुरा करें, तनकीदी करें, अगला बंदा जवाब देगा आपको। अब वो जवाब अगर आपकी पसंद करनी है, आप वापस उससे सवाल करेंगे, वो फिर बहस शुरू हो जाएगी, जवाब शिकवा जवाब। उस बहस के अंदर क्या होगा, या वो हारेगा या आप हारेंगे, यही होगा। जब वो होगा तो उसमें फिर ईगोज आ जाएंगे, फिर लोग गुस्से में आके वो जवाब देंगे, या ईगो में आके वो जवाब, कोई झूठ बोल देगा, कोई मुनाफिकत वाला जवाब देगा, अपनी जान छुड़वाएगा। तो क्योंकि पॉलिटिक्स में आपने अपने वर्कर की तरबियत भी करनी होती है, जैसे हमारी खान साहब ने की है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जब लार्जर गैदरिंग में हो तो सवाल टफ से टफ पूछो। मतलब सवाल पूछे, गिल साहब आपने क्या किया, बातें इतनी करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ क्या आप पहले सवाल पूछो, इससे भी सख्त पूछो। फिर जैसे आपका सवाल सख्त पूछने का हक है, ऐसे ध्यान में रखिए कि जवाब देने का मेरा हक है। अब जवाब के ऊपर फिर यहाँ बंदूक नहीं रखनी है, नहीं वो वाला जवाब दो जो मुझे चाहिए। तो ये रवैया पॉलिटिकल वर्कर, ये मेरी रिक्वेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा जरूर करें जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने जवाब जरूर लेना है तो मैं तो पूरा आलूंगा, लेकिन हो सकता है कोई और बेचारा ना ले। जी आप माजरत, आपकी बात मैंने काटी थी, लेकिन मुझे और बोलना है, बहुत माजरत, प्लीज। मैंने ह्यूमन राइट्स में काफ़ी काम किया, जो पाकिस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है, खास तौर पे जो मालदारी लेडीज़ हैं, अंदर हरासमेंट हो रही है। उस दिन मैंने एक बड़ा ट्वीट के एक लेडी और बेचारी के बच्चे को उन्होंने इस तरह की बहुत अब हम स्विट्जरलैंड में अपनी कॉन्फ्रेंस में होती रहती है, हम लोग करते हैं। असल में मसला ये है कि हम ह्यूमन राइट कमीशन वाले मुल्क में बैठे हैं, जहाँ दुनिया सारी के ह्यूमन राइट वायलेशन पे बात होती है। वहाँ स्विट्जरलैंड का मैंने एक 2 दफ़ा धक्का लगा के लोगों को ले गए, वहाँ पे अपने लोग दूसरों को खेल रहे थे, नहीं लोग फौज के खिलाफ बात नहीं करना, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बात नहीं करना, आपने इसको टोक का करना है, वो ये वो करके ये हमारे बैठे ये नहीं मानते थे। मैंने चंद बात, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें गाइड करें या इसकी जो है ना वो रहनुमाई करें। 2 दफ़ा हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए जिनेवा में, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत जरूरी है कि आपको बिल्कुल करना चाहिए। नहीं हमें तो करना चाहिए, आप भी लीडर, हम तो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इन लोगों को भी आप ये करेंगे, जहाँ कॉन्फ्रेंस से तो हम करते रहेंगे, मुल्क को डेवलप करते रहेंगे, जो आज हमारे सर पे बनी हुई है उसको हम फेस करेंगे। ये नहीं है कि घर में बैठ के हम चाचा निजामुद्दीन हमें देख लेगा तो हमारा नाम लिखेंगे, यही मसला है। आप अच्छा ट्वीट करें, अच्छा आपकी बात वैसे किसी के फोटो लगी हुई हो, क्या आप अच्छा है और ये हो जाता है, लेकिन आप हक की बात करें, किसी की इमरियों की तो एफिशिएंट
ये ऐसे सवाल बहुत चीज़ बातें बहुत कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन करने वाले कुछ नहीं। थैंक यू। जब आप सर अपनी इस चीज से एक चीज लर्न करें, और यही हर शख्स का हक है कि वो किसी मौजूद को डिफरेंट तरीके से, आप में से कोई किसी से तंग होगा, कोई मेरे से तंग होगा, वो हम सबसे तंग हैं। तो राइटली तो आप अगर हम गलत नहीं है तो वो भी गलत नहीं है। तो यही जिंदगी का नाम है कि हम हर एक को जगह दें, स्पेस दें, उनकी बात को सुने, जो हमारे पास है वो वापस अगले बंदे को बताएं। और अगर फिर भी कोई पिछड़ी रह गई है तो कोई मेरा मतलब जीतना जरूरी थोड़ी है। इस बात पे बात खत्म कर दें कि भाई नहीं है मेरे पास पूरी बात का आपकी का जवाब। जैसे आपने मेरे से पूछा कि ये लीडरशिप क्या कर रही है, तो मेरे पास यहाँ देने को जवाब नहीं है आपके। इट्स अ रियलिटी, क्योंकि मैंने तो आपको कहा है कि इंक्लूडिंग मी हम सब में, और मैंने आप लोगों को भी कहा कि जब आपका, अब तो इमरान खान जेल में है ना, लेकिन अगर आप लोग उसके साथ सही वक्त में खड़े होते तो वो जेल जाता ही ना। आप खड़े हुए 10 अप्रैल को, इससे पहले तो आप भी नहीं खड़े हुए सारे। आपका मतलब आपका नहीं है, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूं। वो तो जब उसको हटा दिया तो सबको याद हो, वो इमरान खान चला गया। आप हमें और इन सबको पता था बाद में ये मिलना है जो अभी मिला हुआ है। तो आप लोगों का चस्का ही पूरा नहीं होता, उन्हें वो वाला वज़ीर आज़म चाहिए। तो ये इमरान खान की मोहब्बत नहीं है जो लोग करते हैं, ये लोगों की अपनी जरूरत है। ये जब वो अपने मुल्क का, अपने आने वाली नस्लों का, और फिर चोरों को देखते हैं तो उन्हें लगता नहीं हमें इमरान खान का। तो हम सब अपनी जरूरत के लिए इमरान खान के साथ, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। जी आखिरी सवाल टाइगर्स की तरफ से आ रहा है। वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं प्रोटेस्ट करने जाऊँ तो उनके 2 थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। तो बहुत आसान है कहना कि लोग निकले नहीं, लोग निकले, वोट डालने के लिए तो निकले ना। तो आप ये बताएं हमारे वोट पे आवाम क्या करने के लिए, क्या हल्ला बोल के काम को निकाले पाए या क्या करेगा, कुछ समझ नहीं है। सिर्फ निकले हर कोई बोलता है। देखिए आप सब वही बात है कि अब आप कोई स्पेसिफिक जवाब चाहते हैं, क्योंकि आप एक सवाल रिपीट कर रहे हैं। जो मेरे पास एक था वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। इसका चल मैं 5वें तरीके से इस सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि बहुत बड़े लोग खुल के बोलो, डरो ना। बर्दाश्त नहीं कर पाए और छोड़ दिए, अफसोस होता है। हम क्या करें यहाँ के लोग, हम क्या करें? देखिए सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि किसी भी मकसद के लिए आपने कभी देखा है कि इमरान खान जेल के अंदर जो भी मिलने जाता है वो परेशान होकर बाहर आता है? वो परेशानी नहीं है, वो कहते हैं मैं मुझे कितनी देर में रहना पड़ा, मैं यहाँ आपने ये सुन रखा है? आप सोचते तो होंगे ऐसा कैसे? उसकी वजह है कि 28 साल से बंदा बैठा है, वो 28 साल से मूवमेंट का इंतजार कर रहा है कि आपको शऊर आ जाए, जो आपको आ गया वो तो जीत गया है। तो अब अगला मरहला भी होगा इंशाल्लाह, वो छूटेंगे। अब हमें जुस्तजू करके डिसअपॉइंट नहीं होना। मतलब एक चीज जो आज शाम को होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, एक चीज जो आज शाम को होनी चाहिए वो अगर नहीं होती तो हमने सुबह उठ के फिर कोशिश करनी है उसको करनी है, छोड़ना नहीं है। जब अल्लाह ने लिखी होगी हो जाएगी, कोशिश हमने पूरी करनी है। तो जो बार बार आप सवाल करते हैं हमने क्या करना है, जो हम अभी कर रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं जिनेवा करें, जो हमारी वसातत में हमने वो करना है। अब हमारे में से फॉर एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बुरा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा हक, इनका हक है ये कहना कि आप ऐसा बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे मुझे कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने हिस्से का अच्छा तो करते रहे, राइट?
تو اسی طرح سے اگر ہمیں کسی کا کام برا بھی لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو ہمارے حصے کا اچھا ہے ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ سب کو یہی ہے اور ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ ڈس ہارٹ نہیں، یہ جب آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیے کوئی نکل نہیں رہا ہو، یہ نہیں ہو، یہ آپ آج کی بات یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا کہ آپ نے سوچا تھا ججز خط لکھیں، کسی دن پبلک نے نکل نہیں آنا اور آپ نے سوچا نہیں ہونا جیسے نکل، انتظار کریں تھوڑا سا، لیکن انتظار کرنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کی وساطت میں وہ آپ نہ کریں، وہ کرتے رہتے، ٹھیک ہو گیا جی؟ زندہ باد۔ اچھا جو بھی سوال پوچھتا ہے وہ پہلے یہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ آپ کے سوال جیسے باقی مجمع پورا مانے گا کہ یہ آپ بھی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے سوال نہیں کرنا، میں نے ایک سجیشن دینی ہے، پہلے یہ بات کر لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر آپ کو سمجھ میں کل سے سوئٹزرلینڈ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، میرا سمپل سا سوال ہے، جب سے پاکستان بنا ہے 77 ایئرس ہو گئے ہیں، تو ہمارا آلموسٹ یہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں کا ہی راج رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہے دائیں بازو کی ہیں چاہے بائیں بازو کی ہیں، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس جمہوریت میں، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہم ان کی سپورٹ کے بغیر آ نہیں پا رہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل دنیا کی انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جو ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی از دا رائٹ وے، تو وہ ڈیموکریسی کہاں ہے جب ان سے انٹرنیشنل پاور سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، جب ان کو بڑا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ انٹرنیشنل پاور کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے میں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا جب تک آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ انٹرنیشنلی اس نے ہماری کیا مدد کرنی اگر ہمیں اپنی مدد خود نہیں کرنی؟ سو پاکستان کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑنی، پاکستانی عوام کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑنی، کسی نے ہمیں کچھ نہیں دینا اور نہ کچھ کرنا ہے، اور یہ میں اس سے کو بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا، اور آپ دیکھ بھی لیں جتنی مرضی آپ کوشش کرتے کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، سمجھے نا، ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور پھر ملکوں کے دوسرے ملکوں سے جڑے ہوئے انٹرسٹ ہیں، وہ ان لارجر انٹرسٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ وہ ایک لا حاصل بحث ہے جس پہ آپ پڑھ جائیں کہ جی امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، سوئٹزرلینڈ کو یہ کرنا چاہیے، سعودی عرب کو یہ کرنا چاہیے، اگر وہ آگے سے کہہ لیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے تو پھر ہمارے ملے کہہ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، معاف کیجیے، ہمیں سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو درست کر دیا تو ہمیں انٹرنیشنل کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ مجھے بتائیں ملیشیا کسی کو کہتا ہے کہ ہمارے لیے معاملات نہیں کریں، وہ اپنے معاملے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیسے انٹرنیشنلی کیا کرنا چاہیے انٹرنیشنل نہیں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کا سوال ہی نہیں، انٹرنیشنل گورنمنٹ کا انٹرنیشنل لیول پر کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو جو درست کر کے لیں گے تب بھی باہر سے تو پنجا دیں گے ہی نا ہمارے۔ اچھا میں اس کا جواب میں اس کا جواب نہیں، میں اس کا آپ کو جواب، آپ نے جتنی بھی تاریخ پڑھی ہے 1000 سال پہلے کی، 2000 سال پہلے کی، 3000 سال پہلے کی، اس میں جو بھی تگڑا ہوتا ہے وہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جو بھی تگڑا ہوتا ہے وہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہے کہ یہ پیچھے آپ کو کھڑے ہو گئے اور پھر بعد میں موبائل دلاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہنر جبلت ہے، یہ آپ کو ہم بھی تو کہتے ہیں دشت و دشت دریا میں چھوڑے ہم نے،
सहरा में छोड़े हमने दरिया सहरा में छोड़े दूसरी दुरुस्त नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। तो हमने भी तो अपनी, जब हमें मौका मिला था हमने भी किया था। तो ये जो हमें बहुत बुरा लग जाता है कि ये फलानी ये किया है, उसकी बारी है, वो अपनी बारी दे रहा है, आप ना आने वाली, आप अपने आप को इस काबिल करें कि कोई आपकी तरफ ना देखे। तो कहने की बात ये है कि तुर्की के अंदर तो कोई नहीं करता 2 मिनट हमला, हमारे को करता है क्योंकि हम दिखते हैं। ये बड़ा आसान है, ये आपकी तरफ उंगली करना मेरे लिए आसान है, आपको गलत कहना मेरे लिए आसान है। मैं इसको बिलीव नहीं करता। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने तो दूसरों को हमारे साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती करते देखा। ट्रम्प साहब ने एक वही जो आप कहते हैं दूसरे ये करते हैं, उन्होंने ये किया था, आगे से इमरान खान साहब ने वो किया था, तो मामला खत्म हो गया था। तो इसलिए ये अच्छी हो सकती है क्योंकि पॉलिटिकली मतलब दूसरे पे इल्जाम डालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें, अगर मीर जाफर मीर सादिक ना हो तो टीपू सुल्तान ने उधर ही रहना। मैं समझता हूँ कि इस तरह जैसे उस्ताद यानी साहब ने अपना काम कर दिया, रूलिंग दे दी है, अब गेम हम सब पूरे पाकिस्तानियों के नाम कोई सजेशन देना चाहती हैं उनको लेने में आप इजाजत देते हैं। अच्छा, मेरी सजेशन ये है कि हमें पहले तो अपनी जो टीम है पूरी यूरोप की पूरी यूरोप की और प्लस इंडिविजुअल मुल्कों में जर्नलिस्ट और एडवोकेट की टीम जो है वो मजबूत करनी होगी और हमें ये पता लगाना होगा कि वहाँ पे कौन कौन से पाकिस्तानियों के असासे हैं। दूसरा ये, अगर तो ये उनके लॉ में प्रोविजन है हर मुल्क के इंडिविजुअल लॉ में, तो हम हर मुल्क में केस करें कि वो जो इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वहाँ की करप्शन के जो पैसे को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने देते हैं, किस बेस पे लेते हैं। अपने मुल्क के लिए उनके लॉज और हैं और दूसरे मुल्क के करप्शन को अपने मुल्क में ला के इन्वेस्टमेंट, जब हम एक इस तरह का प्रोसेस हर मुल्क में जहाँ जहाँ पे करप्शन की प्रॉपर्टीज निकली हुई है, जब हर एक मुल्क पे केस करेंगे और फिर सारे मुल्क मिलके एक इंडिविजुअल पूरी यूरोपियन यूनियन के जो भी प्रोसेस है, मुझे प्रोसेस नहीं पता, उस पर करेंगे तो फिर ये एक दरवाजा बंद करने वाली बात होगी। और दूसरे जर्नलिस्ट को हमने जरूर लेना है, उनके अखबारों में जरूर बताना है कि आपके मुल्कों ने लोगों को दिया हुआ है ये एक्सेस कि वो यहाँ पे अपने काले पैसों को ला के इन्वेस्टमेंट करें, तो आप फिर डबल वॉरंटी के साथ किस तरह चल सकते हैं। जब हर मुल्क में केस होगा वो अपने मुल्क को बंद करेंगे तो पाकिस्तान को भी पता होगा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज पे हमने सोशल मीडिया पे बहुत दे लिया, प्रोटेस्ट बहुत कर लिया, क्योंकि हमारी आवाज एक तरीके तक सुनी जा सकती है, लेकिन एक ये तरीका है कि हम इनकी जड़ों में घुसें और वहां से हम अपनी काली भेड़ों को निकाल के बाहर करें और इस मुल्क पे भी लॉ करें कि आप हमारे मुल्कों से लोगों को अलाउ करते हैं तो वो इधर पैसा लेके आते हैं, नहीं करेंगे तो कैसे आएगा पैसा। जी बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बड़ी अच्छी सजेशन है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आपकी जो सजेशन है इस पर खान साहब ने बहुत काम किया था, हुकूमत के दौरान रहते हुए आपको याद होगा, आपकी हर तकरीर में इसका जिक्र करते थे। एक यूनाइटेड नेशन, जरा खामोशी इख्तियार कीजिए, एक यूनाइटेड नेशन का एक इदारा बना हुआ है इसी चीज से, और उसका खान साहब हर बार जिक्र किया करते थे, और जो भी एम्बेसडर आता था इन मुल्कों से या कोई और उनसे मिलने के लिए आता था हेड ऑफ स्टेट, उससे भी वो बात करते हैं। तो देखिए ये तो एज अ कम्युनिटी हम सब का फर्ज है, जैसे आपने कहा ये किसी इंडिविजुअल का काम तो नहीं, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूँगा, अल्लाह आपका हम नासिर हो, पाकिस्तान के तमाम टीम की
तरफ से आपका बहुत शुक्रिया और बड़ी सैर हासिल हुई। सिर्फ 2 मिनट वो जारी करते हैं डॉक्टर साहब इस वक्त जाएंगे क्योंकि बहुत थकन की वजह से उन्हें जाना है। लिहाजा ये कि मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि आप रिसीव रखें और लोगों के दरमियान, तो मेरे ज़हन में एक सजेशन है कि बजाय इलेक्शन के कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो कि चैप्टर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करे या फिर अप्रिशिएट करे और जो जितनी कारकर्दगी दिखा रहा है इंटरनली उसको वो ओहदा दे दिया जाए। थैंक यू। आई नीड योर कमेंट ऑन दिस। जी सर, थैंक यू। मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ दीज सजेशंस आर अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ। I'll be very very thankful to you कि अगर आप मुझे ना maybe text message, WhatsApp और in an email, अगर आप समझते हैं कि कोई certain formula जो है वो बेहतर रहेगा तो please forward it to me so that we can in the next मैंने अगला एक आधा महीना इसी पे काम करना है to reorganize ये सारी OIC के जो rules हैं उनको। तो उसमें अगर हम समझते हैं कि कोई चेंजेस आ सकती हैं जो बेनिफिशियल होंगी हमारे लिए तो इंशाल्लाह हम जरूर उनको चेंजेस लेके आएंगे। बिकॉज़ द इंक्लूजन, दैट्स माय बिगेस्ट थिंग इज कि हमने सबको इंक्लूड करना है। हमने अपनी पार्टी से किसी को निकालना नहीं है। हम पार्टी सक्सेसफुल तभी होगी जब हम लोगों को बाहर से बुला के अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हम लोगों को ये नहीं करेंगे कि क्योंकि आप इलेक्शन हार गए तो अब आप पार्टी से निकल गए। नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दे विल ऑल बी पार्ट ऑफ पीटीआई। थैंक यू सर। दिस इज उमर रहमान। सोशल मीडिया जैसे जी ने और उनकी साथी ने बताया अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, तो आई अलाउड माई सेल्फ टू वर्क अ बिट ऑन सोशल मीडिया। मैं कोई सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब से खान साहब इस सिचुएशन में हैं तब से जो मेरी अदरवाइज जो मेरी जॉब की स्किल्स हैं, लिखना पढ़ना और सारा डिजिटल काम, तो उसको मैंने इसमें यूटिलाइज करना शुरू किया विच इज़ गिविंग क्वाइट गुड रिजल्ट्स। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा काम हो सकता है। अगर मैं आप लोगों ही से सवाल करूँ कि कितने लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉलेज के लिए और कितने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की तादाद होगी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। एम आई राइट? ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और अगर हम ये सोचें कि ठीक है तो फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिशनल मीडिया हम उससे दूर हो गए हैं, तो हमारी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त जो खान साहब के मानने वाले हैं वो मोर देन 80% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हमारी ही रिप्रेजेंटेशन है। सोशल मीडिया ही क्यों? सोशल मीडिया इसलिए कि ये वो मीडियम है जो 2 वेज है। ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो आप सिर्फ सुनते हैं और उनकी शाम की शोज में उनकी सारी गैर पानी लफ्ज़ आ रहे मेरे जहन में। अच्छा, तो आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो 2 वेज है। आप कम्युनिकेट करते हैं और आप अपनी जो बात है वो उसमें करते हैं। ये वाला हमारा चार्ट था जिसको यहाँ पे मैंने प्लेस किया है और इसके 2-3 एस्पेक्ट जो हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। बहुत सारी स्टडीज़ हैं सोशल मीडिया के हवाले से और उनमें से काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर जो 4 पॉइंट्स मैंने अपने इस इवेंट के लिए जो सिलेक्ट किए थे वो ये हैं जो आप देख रहे हैं कि हमारे गोल्स हमें पता होने चाहिए और हमने किस तरह से डिसाइड करने हैं अपने रोल्स और उसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके रिक्वायरमेंट और उन बाकी चीज़ों के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की कब एक जगह पे उसको इकट्ठा करें, सारा जो टैलेंट है, सारा जो
कंटेंट है और उसको बड़ा करके उसको ज़्यादा ऑथेंटिक करके हम पेश करें। और यही वो पॉइंट था जिसकी वजह से ये 4 पॉइंट जो है मुझे लगा कि यहाँ पर एप्रोप्रिएट हैं टू टॉक अबाउट। और इसके हवाले से अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा पॉइंट है तो आप ऑफकोर्स ज़रूर बता सकते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए सोशल मीडिया के। उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें खुद अपने आप को डेली स्टडी करते रहना है। जिन्हें लगता है कि उन्हें अच्छा लगता है कि वो देखें कि हमारे हामी क्या कह रहे हैं, वो लोग जिनको हम पसंद नहीं करते, जो हमें पसंद नहीं है, और वाइस वर्सा, उनकी भी क्या डेली की फीड है, किस तरह की ट्रैफिक चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, हमने कौन से पॉइंट्स को इंगेज करना है। अभी रिसेंट एग्जांपल जो है सोशल मीडिया की वो खान साहब की ब्लू शर्ट है। उनको 2 hours और 37 minutes बिठाए रखा, लेकिन उनको एक लफ्ज़ नहीं बोलने दिया। मकसद शायद ये था कि हम उस बंदे को डिग्रेड करेंगे, उसको बिठाए रखेंगे, लोग प्रोवोक हो जाएंगे और उसके बाद फजूल बातें करेंगे क्योंकि गुस्से में आएंगे। लेकिन हुआ ये कि वो ब्लू शर्ट जो है वो छा गई। और कल की स्टडी ये थी कि अमेज़ॉन में 95,000 शर्ट जो हैं वो नई उनको ऑर्डर मिली हैं। और ये सिर्फ अमेज़ॉन की बात है। कुछ घंटे गुजरे थे तो जो ग्रांट व्यास जो हमारे सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने बताया कि 30 मिलियन टाइम्स खान साहब की पिक्चर जो है वो अपलोड हुई है कुछ सोशल मीडिया पे। सारा डाटा अभी तक ना वो इकट्ठा कर सके ना आशीर्वाद वो इकट्ठा कर सके। तो हमने क्या किया, पीटीआई के लोगों ने ये किया कि हमने बजाय इसके कि प्रोवोक होते, हम डिग्रेड होते, हम गुस्से में आते कि खान साहब को डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड का सामना करना पड़ा। हमने वो चीज़ वहाँ से एक्सट्रैक्ट की और उसको हमने हाईलाइट किया, जिसकी वजह फिर उन्होंने बंदा ढूंढा और उसको बेचारे को फायर किया। वो लोग जो बेडरूम्स में कैमरे लगा रहे हैं उनकी खैर है, लेकिन खान साहब की पिक्चर जो अपलोड करेगा उसको फायर करना ज़रूरी था। सो हमने इस बात को फोकस में रखना है कि हमने सोशल मीडिया से क्या चीज़ उठानी है और किस चीज़ को प्रोजेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट कि हमने अपनी टीम का साइज डिसाइड करना है। जैसे गिल साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंथी ना करें, अपने ऊपर बोझ ना बनाएं। सो ये भी एक चीज़ हमें डिसाइड करनी होगी, व्हाट साइज डू वी नीड। और साइज जो है हमारी टीम का इस लिहाज से होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या ज़रूरत है, हमें कौन से स्किल्स हैं जिसकी इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस फील्ड में नहीं थी, लेकिन जो काम मैं अपनी जॉब के हवाले से करती हूँ, जो मेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, उन सारी स्किल्स को मैंने खान साहब के लिए काम करने पे इस्तेमाल किया। तो मुझे लगा कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं थोड़ा लिख सकती हूँ, थोड़ा बोल सकती हूँ, थोड़ा IT में कर सकती हूँ। इसीलिए उसी वजह से हम जितने लोग जो बैठे हैं, कोई ना कोई, हर किसी में कोई एबिलिटी होगी जो बता सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो रिव्यू कर सकते हैं हमारा जो कंटेंट होगा, जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे उमर साहब ने कहा कि हमें उर्दू के अलावा बाकी लैंग्वेजेस पे भी फोकस करना होगा। तो हमारा अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं खान साहब के हवाले से सब कुछ हमें उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में करना चाहिए। हमें स्पेनिश में खान साहब की चीज़ों को, उनके जो कोटेशंस हैं उनको करना चाहिए, या जो ग्राफिक्स बनते हैं हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसे करना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें स्ट्रक्चर के हवाले से ये जो 4 पॉइंट्स में लिखे हैं कि हमने किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है। मैं PTI की सोशल मीडिया टीम जो है ऑफिशियल, उसकी भी मेंबर हूँ। तो डेली हमें पता होता है कि हैशटैग कौन सा चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ को हमने ज़्यादा बूस्ट देना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से फर्क पड़ रहा है। जब तैयबा राजा की बेल हो गई थी और सलमान जावेद की बेल अभी तक नहीं हुई, तो सबसे मेजर डिफरेंस जो हमने पता किया वो ये था कि जब इलेक्शंस हो रहे थे फरवरी में, तो जो जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान गए हुए थे, उसमें से किसी ने तैयबा राजा के वालिद की छोटी सी फुटेज अल जज़ीरा पर चलाई थी। वो वर्कशॉप पर काम करते हैं और
وہ بہت سیڈ تھے اس حوالے سے، اور اس چھوٹی سی الجزیرہ کی فوٹیج نے یہ کیا کہ طیبہ راجہ کو باہر انہوں نے بھیج دیا کیونکہ اس سے زیادہ بےزتی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو ہماری اس طرح سے ایک طرح سے کولیبریشن ہوگی ان کے ساتھ. تو ہمیں وہ والے جو ہے لنکس ڈھونڈنے ہوں گے جہاں سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، میں بھی ان کی لینگویج پہلے اڈاپٹ کر کے. یہ ایک چیز ہے. اینڈ دین سینٹرلائز، جیسے ہم نے جتنے ہمارے چیپٹرز ہیں، کوئی بھی ایسی نیوز ہو، فار ایگزامپل ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیلی نیوز بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم جتنی کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہماری ایک ویکلی نیوز ہو جائے. آپ لوگوں میں سے شاید میری طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو لنکس آتے ہیں نا، خاص طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ فارورڈڈ ہے یہ میسج، تو میں اسے بہت کم کھولتی ہوں کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں سے وہ آ جائے گا یا وہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوگا. ہم اپنی چیز کریٹ کریں جو یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کی ہو، اور ویکلی ایک نیوز ہو جس میں سارے ہائی لائٹس ہوں تاکہ اس کو اکٹھا بھی کر سکیں اور اسے دیکھا جائے. یہ پرانا اچھا، یہ میری پرانی سلائڈ تھی، اس کو میں نے دوسری سلائڈ میں کنورٹ کیا تھا. لیکن یہ 4 میجر چیزیں ہیں جس کو ہم نے کیا، جو ہماری پوری کانسنٹریشن ہے سوشل میڈیا کی، اس کو ہم 4 پورشنز میں اگر ڈیوائڈ کریں. ہم نے اپنی بات بولنی ہے، لیکن ہم نے اتنی ہی دوسرے کی بات سننی ہے. ہم نے دوسرے کی بات کو لائک کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے کس بات کو لائک کریں اور اس کو ایکول ڈیوائڈ کریں گے. یو ہیو ٹو گو ود دی فلو. اور اس طریقے سے ہمیں اس کا جو ہے وہ بوسٹ سوشل میڈیا کو کرنے کی ضرورت پیش آئی. ایک میں نے ٹیسٹ کیمپین بنائی تھی آج کے لیے، اور وہ کیمپین تھی کہ ہمیں کس طریقے سے سوچنا ہے اسی چیزوں کو بوسٹ کرنا. اب یہ اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ پوسٹ کارڈ ہے اور میرے پاس اتنے پوسٹ کارڈ ہیں کہ آپ سب ایک ایک 2 لے سکتے ہیں. اسی اوپر لکھا ہوا مائنس عمران خان ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ کیمپین ہے IK 101، اس کی میں ممبر ہوں. صدیق جان نے بتایا کہ قاضی انہوں نے کہا ہے کہ اچھا مجھ سے کوئی شکایت ہے تو آپ میرے رجسٹرار کو لیٹر لکھ سکتے ہیں. سو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج کارڈ لیں اور اس کے رجسٹرار کو اپنی کمپلین لکھیں، لیکن کیا ہمیں فیڈ بیک ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیا وہ ہمیں بتائیں گے کہ اچھا مجھے لیٹرز پہنچے ہوئے بہت الیکشن کمیشن کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو میرے ایڈریس پہ ڈینمارک میں واپس پوسٹ ہوئے کہ نہیں جی ریسیو دیم. لیکن کیمپین کیا ہے؟ ٹیسٹ کیمپین از کہ یہ آپ پوسٹ کارڈ لیجیے، اس کو لکھیں، لکھتے ہوئے آپ اس کو ڈاکیومنٹ کریں، آپ اس کی تصویر لیں، اپنا میسج ہو سکتا ہے آپ ویڈیو ریکارڈنگ میں کیپچر کر لیں اور اس کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھیں. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اتنی ہمارے پاس فوٹیج آ جائیں کہ اتنے لوگوں نے قاضی کو خط لکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے اور وہ پوسٹ ہم پھر اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، اس کا افیکٹ ہوگا. اس کو چپکے سے لیٹر باکس میں ڈالنے کا افیکٹ نہیں ہوگا. سو یو آر ویلکم ٹو کم اینڈ گریب دس. یہ باتیں ساری میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ معلوم ہے، لیکن چونکہ ہمارے چارٹ میں کوئی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کچھ زیادہ بتایا جا سکتا ہے، اس لیے آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیل یو اباؤٹ. آپ لوگوں میں سے کوئی اس ٹیم میں یہاں کی جو سوشل میڈیا ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اینڈ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ خان صاحب اگر باہر ہوتے تو وہ کرغزستان کے بارے میں ضرور بات کرتے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ان کے بارے میں ضرور آواز اٹھائیں. بچے بہت پریشان ہیں. اور ویری اینڈ نوٹ، سب لوگوں نے پوچھا برکی صاحب سے بھی اور گل صاحب سے بھی کہ لیڈر کیا کر رہے ہیں، لیڈر کون ہے؟ نہیں ابھی میری بات پوری ہونے دیں. جب ہم سوشل میڈیا پہ نہیں ٹریڈیشنل الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں نا کہ وہ یہ خواجے اور یہ والے جو ٹائپ کے لوگ ہیں وہ جی رہنما ہیں، تو ہمیں کتنی بیڈ فیلنگ آتی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے لیڈر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لیڈر کی ڈیفینیشن کو تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. میں لیڈر ہوں، آپ لیڈر ہیں، آپ لیڈر.
तो हमें उनका इंतज़ार नहीं करना जिनका पे स्केल थोड़ा ज़्यादा है या जिनको लाइक्स ज़्यादा मिलते हैं। हम लीडर हैं, हमने ये काम करना है और हम कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेला जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अब आखिरी मराहल में है, बल्कि हम इसे ख़त्म करेंगे क्योंकि जो तजावीज़ और सवाल जवाब इस पे होने थे चार्ट पे वो हमने गिल साहब से कर लिए और बल्कि साहब से कर लिए। तो ये है कि आपका फीडबैक जो है वो उसी तरह हमें आता रहेगा, फिर उस पर भी हम तजावीज़ का सिलसिला जारी रखेंगे। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं और मैं इसलिए समझता हूँ कि आप सबकी शिरकत ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए और तमाम शुरका यूरोप भर से जो तशरीफ लाए, आप सबकी शिरकत के लिए हम सब स्विट्ज़रलैंड से आप सबको मशकूर और ममनून हैं और कि आप इतनी दूर से इसमें सफ़र करके तवालत के सफ़र से आप तशरीफ लाए और अभी जाने के लिए भी आपके लंबे सफ़र है। तो आप सबका बेहद शुक्रिया और इंशाअल्लाह जो तजावीज़ का है जो इसी सेमिनार को हम उसका दूसरा हिस्सा भी इंशाअल्लाह करेंगे अगले उसमें और बाकी मामला जो है उसमें करेंगे। तो आप बेफिक्र हो के अपने अपने घरों को लौटिएगा कि हम इमरान खान के साथ अपने हर काम में उनके साथ हैं और ये बादल की टीम को शुक्रिया भी अदा करते चले कि जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से ये काम किया और इस सेमिनार को कामयाब बनाया। शकील भाई तो आप सबके सामने हैं जो कि हमेशा इसमें लगे रहते हैं। तो आप सबका शुक्रिया, टीम स्विट्ज़रलैंड का शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।